Hello guys, myself Sudesh Patel. Once again welcome in the online classes of English grammar. This is lecture 10 of English grammar, and in lecture 9 we had discussed what is pronoun and what was the definition of pronoun and personal pronoun. Here we will discuss about reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun and some other kinds of pronoun. So let's start. Let us see what is a reflexive pronoun. When the action of the subject reflects upon itself. When the action of the subject reflects upon itself. जब कोई एक्शन अपने ही आप को शो करता है, अपने आप पर रिफ्लेक्शन डालता है, वो प्रोनाउन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर formed by adding self or selves in the possessive pronouns. Let us see. Suppose that this is my, it is a possessive pronoun. When we will add self in it, it will be myself, and this will be reflexive pronoun. Self will be added when the possessive pronoun is singular. If possessive pronoun belongs from plural, self will be added as our. So this is plural, so we will add selves, them, selves. Okay. Her, it is singular, so self, herself. I think it will be clear to all of you. Now let us see the use. It is very important. First of all, we will see that what is the definition of emphatic pronoun. Then we will differentiate between reflexive pronoun and emphatic pronouns. There is no wordly difference between emphatic and reflexive pronouns. Myself is a reflexive pronoun as well as emphatic pronoun. Herself is a reflexive pronoun as well as an emphatic pronoun. Whichever reflexive pronoun is, that is emphatic pronoun as well. जो भी reflexive pronoun होता है वही emphatic pronoun होता है, but we can differentiate by using them in our sentences. Let us see the use of emphatic and reflexive pronouns. First of all, we will know what is the use of reflexive and emphatic pronouns. Reflexive pronoun हो या emphatic pronoun हो, उसका मतलब होता है अपने आप. क्या होता है? अपने आप. Suppose that if I want to say मैंने अपना काम अपने आप कंप्लीट किया, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? I have completed my work myself. क्लियर? I के लिए हमेशा क्या आएगा? myself आएगा. अगर यही बात करें, you have completed your work, तो यहां पे you के लिए क्या आएगा? yourself आएगा. क्लियर? इट इज डेफिनेट, पक्का बिल्कुल क्लियर है कि I के लिए क्या आएगा? myself आएगा, you के लिए क्या आएगा? yourself आएगा, we के लिए क्या आएगा? ourself आएगा, they के लिए क्या आएगा? themselves आएगा. ये क्लियर रहता है लगभग. अब बात करें डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फैटिक प्रोनाउन में. हमने कहा मैंने अपना काम अपने आप कंप्लीट किया. वी आर स्पीकिंग जनरली, है ना. हम साधारण भाषा में कह रहे हैं कि मैंने अपना काम अपने आप कंप्लीट किया. लेकिन जब हम इसी बात पर फोकस करेंगे, इसी बात पर प्रेशर डालेंगे कि नहीं मैंने अपना काम अपने आप किया है. सपोज दैट योर टीचर इज आस्किंग हु हैव डन दिस वर्क. Definitely will answer I have completed my work myself. आपके टीचर बोलेंगे नहीं आपने नहीं किया है. Then what will you say? You will say I myself have done my work. I myself have done my work. आप उस पर emphasize करेंगे, उस particular pronoun को आप क्या करेंगे? Just after the subject यूज कर देंगे. देखते हैं. I myself have done my work. और आपका कहने का जो एसेंट होता है वो भी चेंज हो जाता है. You yourself
हैव डन योर वर्क। आई थिंक डिफरेंस इज वेरी क्लियर। यहाँ पे हम नॉर्मल जनरली ऐसे यूज कर रहे हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ, और जब यही चीज आप यूज करेंगे इम्फेटिक के रूप में, इसी प्रोनाउन का यूज होगा इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में, तो क्या होगा, ये सब जो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यूज होगा और एम्फेसाइज करके बोला जाएगा, प्रेशर डाल के बोला जाएगा। यहाँ इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ। इसको कैसे पढ़ेंगे, आई माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड माई वर्क। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैंने अपना काम अपने आप कंप्लीट किया है, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, मैंने अपना काम अपने आप कंप्लीट किया है, हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। लेट अस सी इंडेफिनिट प्रोनाउन। एज द वर्ड इंडेफिनिट मींस व्हिच इज नॉट डेफिनिट, निश्चित नहीं है। when a pronoun is referred to person or things in a general way, it is called indefinite pronouns. As all the students are taking all, it is indefinite pronoun. Some, few, ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि डेफिनेट नहीं रहेगा, एनी, एवरी, क्लियर। तो इनको जब हम यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा कि हमको जो जिन बातों पे ध्यान देना है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूर दूर यूज किए जाते हैं तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन अगर जस्ट सब्जेक्ट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। बहुत बुरा पड़ा है। So proceeding further, we will discuss about what is demonstrative pronoun. This is the fifth kind of pronoun. The pronouns that point out. What is mean of demonstrate? Demonstrate means to point out, इशारा करना। Okay? वो प्रोनाउन जो इशारा करते हैं, द प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मीनिंग क्या होता है, इशारा करना। टू द ऑब्जेक्ट्स दे रिफर टू, जिससे जब किसी संबंधित वस्तु की तरफ इशारा करते हैं तो वो प्रोनाउंस क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा। ध्यान देना, यूज, हम इसके यूज पे ध्यान देंगे। दिस, that, these, those, these are the demonstrative pronouns. This is my bag. जिसके बाद वर्ब आना जरूरी है, that is your pen. These are my books. Those are your pencils. जो बात में ध्यान रखनी है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का आ जाना, प्राइमरी ऑक्सिलरी का आ जाना जरूरी होता है। ये क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट, इशारा करना। हमने क्या कहा, दिस इज माई बुक, हम क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, दिस इज माई बुक। ध्यान दें, हम ये नहीं कर रहे हैं दिस पेन इज माइन। हम क्या करें, एक पेन कहीं पर रखा होगा, इसकी तरफ इशारा करेंगे, दिस इज माई पेन। इज इट क्लियर। हम ये नहीं कह रहे हैं दिस पेन इज माइन, हम क्या कह रहे हैं, दिस इज माई पेन। दिस इज द डिफरेंस। अगर हम यही कह देंगे दिस बैग इज माइन तो ये प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी का आना जरूरी है। लेट अस सी द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट रिफर टू पर्सन, प्लेस और थिंग एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउन दैट रिफर्स टू persons, place or things at a time are called distributive pronouns. Each of us, each means प्रत्येक, each of us is very happy. हमें से हर कोई बहुत खुश है. Every student was busy in reading.
तो एवरी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये क्या है, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, एनी, एवरी, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इन चीजों को ध्यान से पढ़ना है। जो वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं वही यूज किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, और हमको इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि हम इनमें डिफरेंस पा सकें। So before studying relative pronoun, we will see interrogative. We will discuss interrogative pronouns. The pronouns that are used to ask questions. क्योंकि interrogative जो होगा वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुट करेगा, तो जो प्रोनाउंस क्वेश्चन को पुट अप करने में, क्वेश्चन को पूछने में मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे हु, हुज, whom, what, when। देखिए हु इज योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क, आपका मित्र कौन है ना। वेयर आर यू गोइंग, कहीं ना कहीं ये जो प्रोनाउन, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, दीज आर हेल्पिंग in asking the question. We are asking the question through these words. So these pronouns are called interrogative pronoun. Let's talk about the relative pronouns. यहां पे ध्यान देना है, ऑक्सिलरी का आना जरूरी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स का आना जरूरी है जस्ट आफ्टर इंटरोगेटिव pronouns. Let us see what is about relative pronouns. The same word that we are using here as an interrogative pronoun, we can use it in the as a relative pronoun as well. देखिए, this is the boy who helped me. That is the school where I got my primary education. Who, where. Here who is used as interrogative pronoun. Why here who is used as relative pronoun? Because it is, what is relative pronoun? The pronoun that are used to ask the pronouns that which show relation, जो क्या करता है, रिलेशन शो करता है, वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जो क्वेश्चन पुट अप करने में यूज किया जाता है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है और क्वेश्चन पूछने में हमारी मदद कर रहा है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। यहाँ पे इनका मतलब क्या होगा, कौन, यहाँ पे क्या होगा, कहाँ, वेयर का। यहाँ देखिए दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जो, क्या मतलब होगा, जो। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, ये वो लड़का है जिसने मेरी मदद की। तो कहीं ना कहीं रिलेशन शो कर रहा है ना। तो क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा और इसका मतलब यहाँ पे कौन भी नहीं होगा, क्या होगा, जो। यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ ना होकर के क्या होगा, क्या होगा, जहाँ होगा। That is the school where I got my primary education. ये वो स्कूल है जहाँ मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की। तो इस तरीके से हमने प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट किया। I think that is very clear to all of you. If you have any doubt, please ask me in the comment box or contact me on my personal WhatsApp or contact number. Thanks.